Hello everyone. Today we discuss chapter 1 Understanding Diversity. In this chapter we understand what is diversity. Then we discuss about story of Samir 1 and Samir 2. What does diversity add to our life? Diversity in India. Then we discuss Ladakh and Kerala, comparison between Ladakh and Kerala, unity in diversity. Okay. Now firstly we understand what is diversity. What do you understand by diversity? India is called the land of diversity because we have various type of food, speak different language, celebrate different festivals and practice different regions and tradition. This is called diversity. डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि कैसे हम सब एक दूसरे से अलग हैं, खाना खाने का तरीका या लैंग्वेज बोलने का तरीका, अलग अलग लैंग्वेजेस, हम इवन अपने फेस्टिवल्स भी जो सेलिब्रेट करते हैं वो भी हम अलग अलग तरीके से ही करते हैं। सब अपने ट्रेडिशंस के हिसाब से ही फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो ये भी एक तरह से डाइवर्सिटी होती है। डाइवर्सिटी रेफर्स टू द presence of a wide range of distinct characteristics, backgrounds, and perspectives within a group of society. It encompasses different in race, ethnicity, gender, age, region, abilities, experiences, and more. Embracing diversity promote understanding and innovations. For example, gender diversity, sexuality diversity, racial diversity, ethnic diversity, social class diversity, age diversity, regional diversity, and culture diversity. Okay, what do you mean by racial diversity? It is a biological classification based on the person, genetic makeup, like color of the skin or शेप ऑफ देयर फेस. सबकी स्किन का कलर एक सा नहीं होता ना, और बॉडी शेप भी डिफरेंट होती है, फेस की शेप भी डिफरेंट होती है, वो भी हमारे डाइवर्सिटी में ही आता है. ओके, नाउ वी एक्सप्लेन ethnic diversity. Ethnic diversity basically is a cultural classification based on the family, cultural background, traditional language and traditions, different nationalities and cultural traditions. होती है हमारी ethnicity diversity. Okay, now we discuss next. इसको हम और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. Diversity is the range of human differences include but not limited to race, ethnicity, gender identity, sexual orientations, age, social class, physical abilities or attributes, religious or ethical value system, national origins and political beliefs. Now we understand introduction. Similarly, we are living in diverse society. Okay, diverse society कैसे? We wear different clothes, speak different language, belong to different culture background, religions and regions. ये भी हमारी एक डाइवर्सिटी है सोसाइटी के. हम सब एक जैसे कपड़े तो पहनते नहीं है, सब एक जैसी लैंग्वेज नहीं बोलते. कोई इंग्लिश में बात करता है, कोई हिंदी में, कोई मद्रासी में, कोई पंजाबी में, तो लैंग्वेज का डिफरेंस भी आ गया. कोई हरियाणवी में भी बात करता है, और सबके कल्चर भी अलग होते हैं. हिंदूज का कल्चर अलग होता है, मुस्लिम का कल्चर अलग होता है, सबके रीजन्स भी अलग होते हैं. अ सोसाइटी comprising people from different regions, language, race, and ethnicity background is an excellent example of culture diversity. Some states and cities in America are culturally diverse. Diversity is a satisfying mix of idea, cultures, race, gender, economic status,
and other characteristics necessary for promoting growth and learning among a group. Having variety in region, culture, and geographic background, as well as experience, belief, and worldview, is a social diversity. Okay, next page. Now we understand story of Sameer 1 and Sameer 2. In this, we understand what is diversity. With the help of this example, I will explain you what is diversity. Sameer 1 and Sameer 2. Okay. Sameer 1 go to school and Sameer 2 does not go to school. Okay, यहाँ पे कौन सी diversity reflect कर रही है? ये हमारी एजुकेशनल डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है कि ये स्कूल में गया है समीर 1 और समीर 2 स्कूल में नहीं गया. ओके, समीर 1 रिच एंड समीर 2 पुअर. यहाँ पे स्टेटस को रिफ्लेक्ट करता है, स्टेटस डाइवर्सिटी. ये है तो दोनों ह्यूमन बींग्स ही ना, बट एक रिच है, एक पुअर है, एक अमीर है और एक गरीब है. तो ये हमारा स्टेटस डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करता है. ओके, नाउ समीर 1 कौन है? वो हिंदू है एंड समीर 2 मुस्लिम है. तो ये हमारा किस चीज को रिफ्लेक्ट करता है? रीजन डाइवर्सिटी को. ओके, कास्ट डाइवर्सिटी भी बोल सकते हो आप इसको. ओके, नाउ समीर 1 नो इंग्लिश एंड हिंदी. जो समीर 1 है वो स्कूल गया तो उसको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है. समीर 2 कभी स्कूल नहीं गया तो उसको बस हिंदी आती है. तो ये कौन सा डिफरेंस हो गया? ये हमारा हो गया लैंग्वेज डाइवर्सिटी. ओके, नाउ इनइक्वालिटी, यहाँ पे भी तो इनइक्वालिटी ही रिफ्लेक्ट हो रही है ना. एक बच्चा तो स्कूल गया है, एक बच्चा स्कूल ही नहीं गया. एक को इंग्लिश आ रही है और हिंदी भी आ रही है, बट दूसरे को बस हिंदी हिंदी आ रही है. तो ये इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी मीन्स कम अबाउट व्हेन अ पर्सन डज नॉट हैव द रिसोर्सेज एंड अपॉर्चुनिटी दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन. तो इसमें यही तो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि एक पर्सन के पास सारी अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज हैं, बट दूसरे पर्सन के पास वो सेम अपॉर्चुनिटीज और रिसोर्सेज नहीं है. तो ये भी एक तरह से इनइक्वालिटी हो गया, ये भी एक डाइवर्सिटी हो गया. कास्ट सिस्टम इज एनी अदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी. स्टिल बोथ ऑफ देम वर फ्रेंड्स. इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी ये दोनों दोस्त हैं. दिस ऑल डिफरेंसेस आर एन एस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी. ओके, तो ये जो भी सब अभी मैंने समझाया कि एजुकेशन डाइवर्सिटी, स्टेटस, रीजन, लैंग्वेज डाइवर्सिटी, इनइक्वालिटी, ये सब एग्जांपल्स जो भी हैं ये हमारे डाइवर्सिटी को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है. कैसे एक ही इंसान दूसरे इंसान से अलग है हर चीज में. ओके, नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट. व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ? Interaction with people from different backgrounds, regions and culture teach us to respect and cooperate with different type of people. हम जैसे भी डिफरेंट बैकग्राउंड हो गया, उनके कल्चर हो गए या फिर अलग उनकी लैंग्वेज, जैसे हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं तो एक तरह से हम डाइवर्सिटी को ही समझते हैं कि कैसे कोई इंसान, एक इंसान दूसरे इंसान से अलग है. डाइवर्सिटी ऑल्सो एजुकेट अस अबाउट डिफरेंट लाइफस्टाइल. बिल्कुल सही है, डाइवर्सिटी हमें डिफरेंट लाइफस्टाइल के बारे में एजुकेट करता है. एंड हेल्प अस टू बिकम मोर टॉलरेंट. फॉर एग्जाम्पल, अभी हमने समीर 1 और समीर 2 का एग्जाम्पल समझा था. उसमें भी तो डाइवर्सिटी थी हर चीज में, फिर भी वो दोनों फ्रेंड्स थे. और डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ फूड, फेस्टिवल्स, क्लोथ्स एंड लैंग्वेज. इमेजिन अ सिचुएशन वेयर एवरीथिंग लुक सेम. अगर हर चीज ही सेम लगेगी तो हमें कैसे पता चलेगा कि एक इंसान दूसरे इंसान से अलग कैसे है? कैसे हम डाइवर्सिटी को फिर समझेंगे? फिर तो डाइवर्सिटी का होना कोई मतलब ही नहीं है. डाइवर्सिटी गिव अस यूनिकनेस. डाइवर्सिटी की वजह से ही यूनिकनेस आती है ना, कैसे एक इंसान दूसरे से यूनिक है. डाइवर्सिटी मेक अवर वर्ल्ड ब्यूटीफुल. डाइवर्सिटी की वजह से हमारा वर्ल्ड बहुत ही सुंदर हो जाता है. डाइवर्सिटी इन इंडिया.
India is a country of diversity, but most of the things are similar, only we do them in different way. ओके, इंडिया भी एक तरह के डाइवर्सिटी है। इंडिया में लाइक हम सारी चीजें सेम ही करते हैं, बट हम उसका करने का तरीका अलग होता है। सब प्रे भी करते हैं, डिफरेंट वे इन विच पीपल प्रे। प्रे तो सभी करते हैं, बट सबकी प्रेज करने का अलग तरीका होता है ना। सिमिलैरिटी क्या होगी? प्रे प्रे करना एक सिमिलैरिटी होगी, बट हम उस प्रेयर को कैसे कर रहे हैं उससे हम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। लाइक हिंदूज प्रे कैसे करते हैं? टेम्पल्स में। मुस्लिम प्रे कहाँ करते हैं? मस्जिद में। और हिंदू अपनी प्रेयर्स कैसे करते हैं? वो पूजा करते हैं या आरती करते हैं। बट मुस्लिम क्या करते हैं? वो नमाज पढ़ते हैं। ओके, डिफरेंट वे इन द पीपल गेट मैरिड। मैरिज एक क्या हो गया? ये तो सिमिलर ही हो गया ना, सभी करेंगे एक एज के बाद मैरिज, तो सबको ही करनी है। बट मैरिज करने के भी सबके अलग अलग तरीके हैं। जो हमारे हिंदू हैं वो मंडप पे मैरिज करते हैं, मंडप मंडप के सामने बैठ के। और जो हमारे क्रिश्चियंस हैं वो स्पेशली चर्च में जाते हैं और शादी करते हैं। तो यहाँ पे भी डिफरेंस आ गया, मैरिज अलग अलग तरीके से करने का। ओके, डिफरेंट वे इन विच पीपल ड्रेस। कपड़े पहनने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। कोई एथनिक ही क्लोथ्स पहनता है, लाइक सूट सलवार ही पहनता है, साड़ी पहनता है, या फिर कुर्ता पजामा पहनता है। और कोई कोई जैसे कि गर्ल्स होगी वो वेस्टर्न ड्रेसेस ही पहनती हैं, लाइक वन पीस पहनती हैं, जींस टॉप पहनती हैं, सूट्स नहीं पहनती हैं। ओके, कहीं कहीं तो लेडीज बस साड़ी ही पहनती है, वो कभी सूट भी नहीं पहनती। तो ये भी स्टेट वाइज ही अलग अलग कपड़े पहनने का तरीका हो गया। ओके, डिफरेंट वे इन विच पीपल ग्रीड ईच अदर। मीन्स जब आप किसी से भी मिलते हो तो वहां पे भी तो अलग तरीके से ही मिलते हो ना। लाइक सपोज कोई कोई किसी से मिलता है फर्स्ट, वो नमस्ते करता है। अदर हैंड कोई कोई किसी से फर्स्ट टाइम मिलता है तो वो उसको राम राम बोलेगा। कोई बोलेगा कि गुड मॉर्निंग, और समवन सेज अस्सलाम वालेकुम। तो ये भी एक तरह से डिफरेंट कल्चर में ही आ गया ना। आपका जैसा कल्चर है आप उस हिसाब से वेलकम कर रहे हो दूसरे पर्सन का। ओके, डिफरेंट वेज इन विच पीपल कुक फूड। इवन खाना बनाने का तरीका भी सबका अलग अलग। खाना तो सभी खाते हैं, ये तो हमारे सिमिलैरिटीज में आ गया कि हम खाना तो सबको ही खाना है। बट उस खाने को आप कैसे बना रहे हो? अगर आप एग्जाम्पल लो, राइस का ही ले लो। कहीं कहीं राइस को बस सिंपल बॉइल्ड करते हैं, दाल के साथ खाते हैं। एंड कोई कोई जो होता है वो राइस को चिकन के साथ खाता है, चिकन बिरयानी बनाता है राइस की। तो यहाँ पे भी राइस को कोई कोई राइस को बहुत ज्यादा स्पाइसी बना के खाता है, कोई राइस में बस सोल्ट डाल के खाता है। तो ये भी एक तरीका ही हो गया कि खाना तो खा तो आप राइस ही रहे हो, बट राइस को बनाने का भी अलग अलग तरीका है, अलग अलग कल्चर के हिसाब से। ओके, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड the different way in which people cook foods. Okay, next page. How do we explain diversity? Diversity due to the movement of people from one place to another. Okay, geographical factors की वजह से भी diversity आती है। We can say that historical and geographical factors influence the diversity of region. Example, Ladakh and Kerala. ओके, अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे लद्दाख और केरला का। उससे हम समझते हैं कि लद्दाख में जो लोग होते हैं वो कैसे रहते हैं, केरला के लोग होते हैं जो वो कैसे रहते हैं। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा डिफरेंट देखने को मिलेगा आपको। ओके, नाउ वी डिस्कस अबाउट लद्दाख। कि लद्दाख ये इंडिया का मैप है, लद्दाख यहाँ पे सब पे टॉप पे है, ये है लेह लद्दाख। ओके, लद्दाख इज इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द ईस्ट वैली जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर के पास में, ईस्ट वैली में। नाउ इट इज अ यूनियन टेरिटरी। ओके, इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। यहाँ पे हमेशा ठंडी रहती है, गर्मी होती नहीं है यहाँ पे। वेरी लिटिल एग्रीकल्चर इज पॉसिबल। बहुत ही कम, मतलब वहां पे हम खेती नहीं कर सकते हैं, एग्रीकल्चर बहुत ही लिटल,
क्योंकि वहां पे ठंडी बहुत ज्यादा होती है और वहां पे ऑक्सीजन लेवल भी बहुत लो रहता है, तो जिस वजह से वहां पे एग्रीकल्चर करना मतलब खेती करना बहुत ही मुश्किल है। ओके। रिसीव नो रेनफॉल, वहां पे बारिश होती ही नहीं है। एंड इज कवर्ड इन स्नो फॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ द एरिया। ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा स्नो होती है। फॉर ड्रिंकिंग वाटर पीपल डिपेंड अपॉन द मेल्टिंग स्नो। जब स्नो मेल्ट करते हैं वो उन्हें उससे ही पानी मिलता है, उसी को वो पीते हैं। इन लद्दाख शीप रेयरिंग इज वेरी कॉमन। ये शीप है, इससे हम पश्मीना शॉल बनाते हैं। ये देखो, ये पश्मीना शॉल। ओके। ये जो इनकी ये जो वुल है ना, इससे ही पश्मीना शॉल बनता है। प्रोड्यूस वुल पश्मीना शॉल आर मेड। वुल इज कलेक्टेड फ्रॉम लद्दाख एंड पश्मीना शॉल आर वॉन इन कश्मीर। ओके। जो यहाँ का जो खाना है, उनका फूड क्या क्या है, जो वहाँ के इंसान रहते हैं उनका खाना कैसा है। पीपल ईट मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। वहां पे वो मीट खाते हैं और दूध से बनी हुई चीजें ही मोस्टली वो खाते हैं। ईच फैमिली ओन हिज गोट्स, काउ, डजन याक काउस। ये जो याक काउस है ना, मतलब वहां पे जितने फैमिली, जो भी फैमिली वहां रहती है उनके पास ये होती है। वो इनसे ही, इनका ही मिल्क वगैरह, मिल्क यूज करते हैं, बेचते भी हैं, उनसे प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं जैसे पनीर बनाना, और उन्हीं चीजों से खाते हैं। ओके। तो ये होगी इनकी खाने की बात। लद्दाख गोट attract its shares to traders, attract its shares of traders who travel from the passes. Buddhism reached Tibet, while Ladakh also known as Little Tibet. Okay, जो लद्दाख है उसको हम लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं। Significant Muslim population also live here. Ladakh has a very rich oral tradition of songs and poems. Local variations of the Tibetan nation, the Kesar Saga, are performed and sung by both Muslim and Buddhism. केसर सागा वहां पे बुद्धिज्म और मुस्लिम साथ मिलके गाना अपना सिंग करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ओके। केरला, a state in a southwest corner of India, surrounded by the sea of one side and the hill और other side। जो हमारा केरला है वो हमारा साउथ वेस्ट कॉर्नर में है, साउथ वेस्ट कॉर्नर में है केरला। ओके। एंड सराउंडेड बाय सी, एक साइड पे समुंदर है, एक साइड पे पहाड़ है, तो इस तरह से केरला है। एंड स्पाइसेस होती हैं वहां पे, मसाले मसाले उगाए जाते हैं वहां पे। पेपर, क्लोव, और जैसे ये पेपर पेपर हो गया, क्लोव हो गए, ये वहीं पे होते हैं। और ये हमारी वो, इसको हम इलायची, इलायची भी वहीं पे होती है। ओके। Jewish and Arab traders were the first to come here. Okay. Thomas is credited to bring Christianity to India in 2000 years ago. Ibn Battuta, a traveler who wrote a travelogue in which he describes the life of Muslims and say that they were highly respected community. Okay. Now we discuss more about Kerala. Due to these historical influences, people in Kerala practice different religions such as Judaism, Islam, Christianity, Hindu and Buddhism. और वहां पे केरला में क्या होता है, फिशिंग होता है एंड एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन। देखो लद्दाख में तो हम ना तो फिशिंग कर सकते थे, ना वहां पे हम खेती कर सकते थे, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा ठंड होती है। बट केरला साइड में हम फिशिंग कर सकते हैं, हम खेती भी कर सकते हैं। और यही इनकी मेन ऑक्यूपेशन का मतलब है, यही इनकी मेन काम है वहां पे करना। इसी से उनका इसी से उनकी इनकम अर्न होती है, इसी से वो अपनी लाइफ जीते हैं, अपना इनकम लाते हैं, इसी से उनकी फैमिली चलती है। चाइनीज फिशिंग नेट आर यूज फॉर फिशिंग। जो चाइनीज फिशिंग नेट है, ये देखो, ये है हमारा चाइनीज फिशिंग नेट, इसी से वो फिशिंग करते हैं।
द चाइनीज फिशिंग नेट आर कोल्ड चाइना वाला, इसको हम चाइना वाला कहते हैं। चाइना वर्ड डिराइव फ्रॉम चाइना, जो चाइना है वो वर्ड हमारा डिराइव कहाँ से हुआ है, चाइना से। सिमिलरली यूटेंसिल यूज फॉर फ्राइंग इज कॉल्ड द चाइना चाटी। ओके, मेजोरिटी ऑफ पीपल हेयर ईट राइस, ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या करते हैं, राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। और वो फिशिंग करते हैं तो ऑब्वियसली वो फिश तो खाएंगे ही। एंड वेजिटेबल, वहाँ पे एग्रीकल्चर पॉसिबल है तो वहाँ पे वेजिटेबल हो गया, अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, वहाँ पे मसाले भी उगते हैं तो वो ये सब यूज करते हैं। एंड ईट राइस। बोट रेस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट इन केरला। यहाँ पे एक ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है हर साल, जिसमें वो बोटिंग रेस करते हैं। ये देखो यहाँ पे ये सब, दिस इज ओनम फेस्टिवल जिसमें ये बोटिंग रेस करते हैं, अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। ओके, नाउ कंपैरिजन बिटवीन लद्दाख एंड केरला। अब हम कंपैरिजन करेंगे लद्दाख का केरला से। ओके, कि लद्दाख और केरला से कैसे अलग है, वैसे आप लोगों को समझ आ गया होगा। अप्रोक्सीमेटली सारे पॉइंट्स मैंने वहां पे कवर कर ही दिए हैं, फिर भी हम इसको अगेन रिकैप कर लेते हैं। लद्दाख कहाँ पे लोकेट था, नॉर्थ ऑफ द कंट्री। केरला कहाँ लोकेट था, साउथ साइड में। ओके, लद्दाख इज सराउंडेड बाय द हिमालयाज एंड हैज कोल्ड वेदर। ओके, अभी हमने डिस्कस किया था कि भाई वो बहुत ही ऊपर है और वहां पे कोल्ड क्लाइमेट रहता है, ज्यादातर वहां पे स्नो होती रहती है। Kerala lies close to the Indian Ocean and the Arab Sea, hence has a hot and humid climate. Okay, केरला का ऐसा होता है हॉट, मतलब गर्मी होती है वहां पे ज्यादातर और ह्यूमिडिटी रहती है। लद्दाख हैज प्रोडिमेंटली बुद्धिस्ट कल्चर, प्रीडोमिनेंटली बुद्धिस्ट कल्चर है वहां पे विद अ स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस ऑफ तिब्बतियन ट्रेडिशन। And Kerala has predominantly Hindu culture, which a significant Muslim and Christianity population. Okay, यहाँ पे जो तिब्बतियन ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, यहाँ पे मुस्लिम एंड क्रिश्चियन पॉपुलेशन है यहाँ पे केरला साइड में। द पीपल ऑफ लद्दाख आर नोन फॉर देयर कलरफुल फेस्टिवल्स, ट्रेडिशनल एंड हैंडीक्राफ्ट। And in Kerala, people of Kerala are known for their rich history, classical dance form, and cuisine. Okay, next page. Ladakh lead a simple and self-sufficient lifestyle due to the harsh living condition in the region. Kerala lead to a laid-back lifestyle with the focus of leisure and recreation. They also known for their hospitalities and emphasis on Buddhist values. They are also known for their love of food, music, festival. Okay, conclusion क्या निकला, लद्दाख और केरला आर टू इंडियन स्टेट, और वो कैसे एक दूसरे से अलग हैं। एक जगह बहुत ज्यादा ठंड है, एक जगह बहुत ज्यादा गर्मी है। एक जगह भाई एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हम, कुछ भी नहीं वहां पे मतलब उगा नहीं सकते, और दूसरी साइड केरला में हम मसाले भी उगा सकते हैं, हम राइस भी उगा सकते हैं, इवन हम हर चीज उगा सकते हैं वहां पे। एंड फिशिंग भी कर पाते हैं वहां पे। हम लद्दाख में फिशिंग नहीं कर सकते क्योंकि वहां पे बहुत स्नो होती है, मोस्टली बहुत ठंड होती है। बोथ स्टेट्स हैव अ रिच history and unique tradition that make them important part of India diverse culture landscapes. Okay, दोनों की अपनी एक रिच हिस्ट्री और यूनिकनेस है। ऐसे नहीं बोल सकते लद्दाख एक अच्छी प्लेस नहीं है, या हम ये नहीं बोल सकते केरला एक अच्छी प्लेस नहीं है। दोनों अपने आप में बेस्ट है। ओके, एंड अपने आप को ये हमें रिफ्लेक्ट क्या करता है, डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी मीन्स एक प्लेस दूसरी प्लेस से कैसे अलग है। इवन है तो दोनों इंडिया में ही ना, फिर भी देखो आप लद्दाख का लाइफस्टाइल कितना अलग है, क्लाइमेट कितना डिफरेंट है।
ओके। एंड फूड इवन यू गो फॉर फूड भी, तो खाने का तरीका कितना अलग है, कपड़े पहनने का तरीका कितना अलग है लद्दाख और केरला का, और है दोनों इंडिया में ही। तो दिस इज कॉल्ड डाइवर्सिटी। ओके, नेक्स्ट। Both the places are at the different part of the country having different geographical feature। अभी मैंने आपने बताया कि दोनों ही इंडिया में ही है ना। And both the regions has seen similar culture influences। Both are influenced by Chinese and Arab traditions। Geography of Ladakh is favorable for sheep rearing and their wool attracted traders। लद्दाख क्या किस चीज के लिए ज्यादा फेमस है? वो अपने शॉल्स के लिए फेमस है, जो पश्मीना शॉल्स वगैरह बनाते हैं वो। एंड केरला किस चीज के लिए फेमस है? स्पाइसेस, अपने मसालों के लिए। वहां पे अलग अलग तरीके के मसाले उगाए जाते हैं। सिमिलरली अवर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वे ऑफ लाइफ एड डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड। इसकी वजह से हमारे देश में डाइवर्सिटी ऐड होती है। ओके। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। यूनिटी का मतलब होता है एकता, एक साथ मिलके रहना। इवन हम अलग अलग कल्चर से बिलोंग करते हैं, अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं, बट रहते तो सब एक साथ ही है ना। यूनिटी ऑफ डाइवर्सिटी क्या रेफर करती है? हार्मोनी एंड पीस। ओके। it is employed among various group to ensure that tolerance in uniform caste, creed, race, nationality are the example of diversity। Physical, culture, linguistic and political difference are also included in unity of diversity। I hope everyone understand this। Diversity our strength। Diversity हमारी एक ताकत है, बट वो कैसे ताकत है हमारी? हम एक एग्जाम्पल लेते हैं पास्ट का ही। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, people from different culture, region and religion background come together to oppose them। British thought that they could divided India due to diversity। ब्रिटिश को लग रहा था इनकी आपस में फाइट करवा देते हैं एज अ कास्ट के उस बिहाफ पे, और ये सब एक दूसरे से लड़ेंगे और अलग अलग रहेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अलग अलग कास्ट रीजन के जो भी पीपल आए वो साथ में एक साथ हो गए और ब्रिटिश लोगों को हरा दिया। बट द पीपल शो हाउ दे कुड बी डिफरेंट एंड येट बी यूनाइटेड इन देयर बैटल अगेंस्ट द ब्रिटिश। ओके। Song and symbol that embraced during the freedom serve as a constant reminders of our country's rich tradition of respect for diversity। For example, story of Indian flag. In the book Discovery of India, Jawaharlal Nehru said that India unity is not something opposed from the outside, but rather it was something deeper and within it fold। The widest tolerances of belief and customs was practiced and every variety acknowledged and even encouraged। Nehruji counted the phrase unity in diversity। Okay. Okay. Your chapter is finished. Now we discuss NCERT solutions. Okay. Question number 1. Draw up a list of the different festivals celebrated in your locality. Which of these celebrations are shared by members of different regional and regions communities? ओके, इसमें है कि जो भी आप जहाँ पे भी रहते हो वहां पे कौन कौन से डिफरेंट फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, उन सब की लिस्ट बतानी है। ओके। तो डिफरेंट फेस्टिवल्स जो सब सेलिब्रेट करते हैं अलग रीजन और कास्ट के जो कम्युनिटीज हैं, सब अलग अलग होते हैं ना। कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, तो सब अपने अपने फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। आपको वो पता नहीं है कौन कौन से होते हैं। ओके। सबसे पहले होली, पोंगल,
क्रिसमस, गणेश चतुर्थी, दिवाली, दशहरा, ईद, रथ यात्रा, महाशिवरात्रि, नवरात्रि, ईस्टर, रक्षाबंधन, इंडिपेंडेंस डे, ओनम, लोहड़ी। ओके। एंड जो हमारे नेशनल फेस्टिवल्स हैं जो सब ही सेलिब्रेट करेंगे, पूरी इंडिया में सबको सेलिब्रेट करना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, ये कोई मैटर नहीं रखता। तो वो जो हमारे फेस्टिवल्स हैं वो है हमारे रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती आर सेलिब्रेटेड एवरी सिटीजन of region and religions. Okay, now what do you think living in India with its rich heritage of diversity adds to your life? Yes, बहुत कुछ ऐड करती है डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में। क्या ऐड करती है? लिविंग इन इंडिया with its rich heritage of diversity adds to our life in the following way. We know different people, different culture, custom, traditions, background. बिल्कुल सही बात है। हमें इसकी वजह से अलग अलग लोगों से मिल के कम्युनिकेट करके उनके कल्चर के बारे में, उसके कस्टम, ट्रेडिशंस, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है। अभी हमने जब एक्सप्लेन किया था कि अलग अलग लोग प्रे तो सभी करते हैं ना, बट अलग अलग तरीके से करते हैं। फूड बनाने का तरीका सबका अलग होता है, इवन शादी करने का तरीका भी अलग होता है। तो ये सब हमें डाइवर्सिटी से ही तो सीखने को मिलता है, अलग अलग कल्चर्स को देख के सीखने को मिलता है। ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी भी हमने देखा, भाई लद्दाख और केरला का एग्जाम्पल लिया था, तब वहां पे हमने देखा था ना, ज्योग्राफिकली ये है तो स्टेट दोनों इंडिया की, बट वहां का रहने का तरीका, वहां का क्लाइमेट, वहां पे सब कुछ कितना डिफरेंट था। डिस्कस geographical diversity, discuss our way of life, our food, our occupation and many more other things. Okay, next question. Do you think the term unity in diversity is an appropriate term to describe India? Yes, I think. What do you think Nehru is trying to say about Indian unity in the sentence quoted above from his book The Discovery of India? Okay. Yes, I think the term diversity, unity of diversity is an appropriate term to describe India. Correct. The term unity of diversity was coined by the Jawaharlal Nehru. People of India have different languages which they speak, different culture which they practice, and many more, which is why India has diversity. And they live in the same community and share each other joy and sorrow. They celebrate different festival together, different regions. In the book of Jawaharlal Nehru, The Discovery of India, he said that India unity is not the something opposed from the outside, but rather it was something deeper and within it fold. The widest tolerance of belief and custom was practiced, and every variety acknowledged, and even encouraged. Okay. Next question. Underline the line in the poem sung after the Jallianwala Bagh, which according to you reflect India essential unit. Answer is that according to me the following reflect India's essential unit is O friend, the blood of Hindu and Muslim flow together today. Okay, and next question: choose any other region in India. Sorry, and do a similar study of the historical and geographical factors that influence the diversity found there. Are these historical and geographical factors connected to each other? How? We chose Bihar and Punjab in India to study the similarities, historical and geographical factors that influence the diversity found there. Okay. ये बिहार है, यहाँ पे हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल फैक्टर, पंजाब हिस्टोरिकल ज्योग्राफिकल। ओके, हिस्टोरिकल फैक्टर्स बिहार में क्या होते हैं? ट्रेडर फॉर ब्रिटेन एंड ट्रेवलर्स फ्रॉम चाइना। ओके, एंड इसके ज्योग्राफिकल फैक्टर क्या है? टोपोग्राफी, क्लाइमेट एंड
वेजिटेशन, ओके, इसके है रिवर गंगा, कोशी। एंड क्लाइमेट हॉट एंड वेट होता है बिहार में। और राइस होता है, जूट और वीट होता है, ओके। हिस्टोरिकल फैक्टर, ट्रेडर्स फ्रॉम ओवरसी, ट्रेडर्स फ्रॉम विद इन द कंट्री। ट्रेवलर, ट्रेवलर्स जो थे हमारा आईबीएन भटूटा था और अलेक्जेंडर ईटीसी। और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हमारे लाइक ट्रोपोग्राफी क्या थी, 5 रिवर्स कवर विद हिमालय रेंज फ्रॉम नॉर्दर्न साइड। क्लाइमेट इसका इसका हमारा होता है हॉट एंड कोल्ड, यहाँ पे क्या है हॉट एंड वेट। वेट का मतलब क्या होता है ड्राई, एंड कोल्ड का मतलब ठंडा। एंड वेजिटेशंस व्हीट राइस एंड शुगर केन। ओके, पंजाब में क्या उगाते हैं, व्हीट राइस एंड शुगर केन, ओके। एंड थैंक यू so much for watching this video. I hope you understand everything. Thank you so much.